Good morning, dear children. As we are doing our lesson number 2, shapes and angles, and in previous classes we have learned about so many types of angles. The first one is the right angle. Yes, dear children, the angle which makes L shape is known as right angle. The next is acute angle, the angle which is less than 90 degree. We have learned about it. The angle which is less than 90 degree is known as acute angle. It is less than 90 degree. It is less than right angle. It is known as acute angle. Next, we have learned about another angle, and that is more than right angle. It is more than right angle, and we call it more than 90 degree, and we call it obtuse angle, and it is known as obtuse angle. Yes, you have learned also all about this. So dear children, today we will find out the angles in a clock. Okay, angles in a clock. When the hands of a clock moves, it makes so many angles in between these hands. The first clock is given here. Yes बेटा, आपको बताना है कि इन जो क्लॉक्स की जो हैंड्स हैं, ये जो दो, एक मिनट हैंड और एक आर हैंड है, इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है. तो अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पर देखिए, ये जो आर हैंड है वो हमारा 3 पर है, और जो मिनट हैंड है वो हमारा 7 पर है. तो यहाँ पर हमारा टाइम हो रहा है बेटा 3:35. ओके, सो द एंगल बिटवीन 3 and 7 is this, and it is looking like more than right angle. Yes, it is more than right angle, or it is more than 90 degree. So we will write it as obtuse angle. क्या लिखेंगे हम इसको? obtuse angle. ठीक है बेटा. The next figure we will see. Yeah, this is the figure. It has so many clocks. The first one is the hands are at 12 and 4. So children, this is also an obtuse angle. It is more than 90 degrees, so it is also an obtuse angle. The another one is the hour hand is at 3 and the minute hand is at 12, so it is of L shape, so it is of 90 degree. In another figure, the hands are at 6 and 9, and it is also making a L shape, so it is also a 90 degree. It means it is a right angle. Now in the next clock, it is the hands are at 1 and 12, and look at this children, it is less than 90 degree. It is not a L shape, so it is less than 90 degree, and less than 90 degree we write it as acute angle. Yes, it is acute angle. And the next clock, the hour and minute hand are at 12 and 6, and it is making a straight line, and I have told you earlier, the straight line, the angle is of 180 degree. Yes, it is a straight line, and the angle of a straight line is 180 degree. The next clock, the time is 8 o'clock, and the angle is this. It is not L shape, it is not obtuse, it is not more than 90 degree. It is more than a straight line, and more than a straight line, it means it is a reflex angle. I have told you, the angle which is more than a straight line, or which is more than 180 degree, that angle is known as reflex angle. That angle is known as reflex angle. Yes, it is reflex angle. So dear children, we have
seen so many clocks here. Now let's find out angle in yoga postures. Angle in yoga postures. We have done yoga in International Yoga Day. So children, this is the सुखासन पोस्ट और मेडिटेशन पोस्ट. सो इसमें हम अगर देखें तो यहाँ पर इस बॉडी पार्ट्स के थ्रू बहुत सारे एंगल्स हमारे बनते हैं. तो सबसे पहला अगर हम एंगल देखें तो एंगल हम देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये देखिए हमारी नेक है और ये हमारी शोल्डर है. तो नेक और शोल्डर में हमारा जो एंगल बन रहा है वो है एल शेप का. एंड यस, एन एल शेप एंगल इज़ 90 degree. If we look at other side, it is also 90 degree. It is also of L shape, right? Now look at the arm and the elbow. This is more than 90 degree. This is also more than 90 degree. Okay dear children, now look at this pose. This hand, it is making an acute angle. Yes, you are right, it is making an acute angle. So we can watch so many angles in our surroundings. The next pose is this child is making, देखिए, this is a straight line. Yes, it is a straight line, so it is making an angle of 180 degree. But if we look at these legs, अगर हम इनके पैरों की तरफ देखें तो इन पैरों में कौन सा एंगल बन रहा है बेटा? एक्यूट एंगल बन रहा है. एंड इट इज़ लेस देन 90 डिग्री. ओके, एंड द नेक्स्ट फिगर इज दिस. द हैंड्स एंड द लेग्स, दीज आर मेकिंग दिस एल शेप फिगर. सो इट इज़ 90 डिग्री. ये एल शेप का फिगर बना रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा. The next yoga pose, it is here. These hands and these legs both are making L shape, so it is also 90 degree. Look at this shape. The boy is touching his feet, so the angle between his toes and his hands, it is less than 90 degree, so it is acute angle. We say it acute angle. इसके हाथों और पैरों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से भी कम है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा? acute angle. हम इनको कह रहे हैं acute angle. Yes, it is acute angle, right? So look at another yoga pose. Yeah, दूसरे पोज में यहाँ पर देखिए, ये बच्चा यहाँ पर अपने हाथों से पैरों को पकड़ रहा है. तो यहाँ पर अगर हम देखें ये तो वैसे तो ये एल शेप बन रहा है, लेकिन अगर हम इसके पैरों को देखें, एल शेप यहाँ पर 90 डिग्री हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, अब ये इसका सिर है और ये इसका हाथ है, तो यहाँ पर ये कैसा एंगल बन रहा है? लेस देन 90 डिग्री. तो ये यहाँ पर बन गया आपका एक्यूट एंगल. ठीक है, नेक्स्ट ये इसकी एल्बो और ये इसका आर्म है, तो यहाँ पर ये बन गया मोर देन 90 डिग्री, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल. इट इज़ ऑब्ट्यूस एंगल. फिर ये यहाँ पर इसका पैर सीधा है और ये इसके टोज़ हैं, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है बेटा? इसका राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री. तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे एंगल्स नज़र आते हैं. तो ये देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर लाइंस फिगर बना हुआ है. यहाँ पर ये आपको बताना है कि ये कौन से एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए ये बच्चे का हाथ है और ये इसकी एल्बो है, यहाँ पर बन रहा है एल शेप, यानी कि ये है 90 डिग्री. यस, सेकंड फिगर में देखिए ये लेस देन 90 है, तो इसका मतलब इट इज़ एक्यूट एंगल. ये 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है. थर्ड फिगर में देखिए ये जो इसके हाथ है ये चौड़े हो गए हैं, ये एल शेप में नहीं है. तो जब चौड़ा होता है, जब कोई चीज़ के दो बीच
दो लाइंस के बीच में जब चौड़ी जगह होती है तो वहाँ पर कौन सा एंगल बनता है बेटा? मोर देन 90 डिग्री। और मोर देन 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये देखिए बेटा, नीचे ज़मीन में लेटा हुआ है, ये भुजंग आसन कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए भुजंग आसन में भी हमारा ये मोर देन 90 डिग्री बन रहा है। और मोर देन 90 डिग्री इसका मतलब ये है ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस तरीके से हम योगा पोजेज़ में बहुत सारे एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी फिगर्स हैं। तो यहाँ पर ये और भी हमारी फिगर्स हैं। देखिए ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये राइट एंगल बन रहा है। ऐसे यहाँ पर इन दोनों हाथों के बीच में स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी फिगर्स में हम एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर दो बच्चे हैं, यहाँ पर ये दो लड़कियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पर अपने हाथों से और ये पूरी बॉडी के पोस्चर में यहाँ पे भी एल शेप का बन रहा है। एल शेप यानी कि 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे ये इसके हाथ हैं और ये पेट है। तो ये देखिए ये 90 से ज़्यादा है बेटा, तो ये बन गया यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल। यस, इट इज़ मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पर जो इसके लेग्स हैं और जो थाइज़ हैं, ये देखिए थोड़ा सा बेंड हो रखा है, तो यानी ये 90 से कम है, तो ये बन गया यहाँ पर एक्यूट एंगल। ठीक है बेटा, तो आपको भी क्या करना है, ऐसे ही बहुत सारे योगा पोजेज़ करने हैं और आपको बताना है कि कौन से योगा पोजेज़ में लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, मोर देन 90 डिग्री बन रहा है, या फिर राइट एंगल बन रहा है। ओके चिल्ड्रन, दीज आर मोर yoga poses. You have to find out all the 3 types of angles in these yoga poses. Okay children, thank you.